Recording in progress. Okay, today's our topic is regarding the athlete coach relationship. जो आज हमारा टॉपिक है वो एथलीट कोच रिलेशनशिप का है और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और आप कह सकते हो कि ये जो मुद्दा है ये हमें कहीं ना कहीं हर समय काम में आता है. So as I'm from the athletics, so we have taken the guidance of world athletics. So main thing is that why we want to know the coach-athlete relationship, how it is helping for the coaching, and what is the philosophy and what are the styles of coaching. Because coach and athlete relationship is a vast area, and why you need it? Because we want to be a better leader. So what is coaching? You can say that coach is a person who is always grooming the athletes. So it is covering a wide range of activities. And why we need all these activities? Because to help someone for preparing something. As we are from the different disciplines, we are from having different disciplines and different type of needs. So coaching and coach, they are having a vice versa relationship. ये जो कोचिंग हमारा मुद्दा है, ये कोच एथलीट रिलेशनशिप का क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोचिंग किससे रिलेटेड है? कोच करवाता है और हम किससे करवा रहे हैं? हम बच्चों को करवा रहे हैं. सो ये एक बहुत बड़ा दायरा है और जिसके अंतर्गत हमें देखना है कि हम किस तरह से अपने एथलीट्स को ट्रेनिंग कराकर उन्हें एक हाई लेवल परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर सकते हैं. सो कोच क्या है कि व्हाई यू वांट टू बी ए बेटर लीडर? बिकॉज कोचिंग इज इन्वॉल्विंग टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्टिंग एंड मोर. Coach has to be a teacher also. You have to train also. You have to instruct also. And besides that, you have to groom the athlete in various ways. Maybe physiological, psychological, nutritional. You have to give them a general knowledge or just to instruct them regarding the each and every aspects as a leader. So we can say that it is not simply about helping people to learn sports skills, improve performance, and reach their potential. So we can see that it's not simply to nurture them, but we have a lot of responsibilities besides that also. So it is not about reconciling, understanding, respecting, and providing what are the needs of the athletes. So हम क्या कहते हैं कि कोचिंग क्या है? कोचिंग के दायरे में हम बच्चों को सिखा भी रहे हैं, अपने एथलीट्स को ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं और उसके साथ ही साथ हम उन्हें और बहुत से तरह के इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं. और कोचिंग क्या है? सिर्फ हमें स्किल प्रैक्टिस करवाना या परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं वहीं तक सीमित नहीं है. हमें उनका एज ए जो ट्रेनिंग्स हैं उनका हर एक चीज में ध्यान देना पड़ता है कि उनका डे टू डे लाइफ कैसा है, उनकी ट्रेनिंग कैसे चल रही है, वो साइकोलॉजिकल डिमोरलाइज तो नहीं है, कोई और दूसरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. यू हैव टू बी अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑल्सो. आपको एक फ्रेंड की तरह भी रहना है, एक फिलोसोफर की तरह भी रहना है और एक गाइड भी बनना है. क्योंकि ट्रेनिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप उनको स्किल प्रैक्टिस करवाओ और सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए क्या चीज है उसी चीज पे ध्यान रखो. हमें बच्चों को समझना भी है, उनकी डिमांड्स क्या है, उनको किस तरह से हमें ट्रेन करना है. अगर वो साइकोलॉजिकल अपसेट है तो हम किस तरह से उन्हें पेप टॉक देके किस तरह से हमने एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं ताकि जो आप ट्रेनिंग करवा रहे हो उससे आप उनका परफॉर्मेंस अप हो. नेक्स्ट हमारा क्या आता है? जो हमारे नीड्स हैं एज ए कोच एंड एज अ कोचिंग and athlete relationship, there are different type of need and they cover a wide range such as social, emotional needs as well as the more obvious needs related to sports and competition. So इनकी जो नीड्स हैं क्या काफी बड़ी हैं, है ना? सोशल दायरे में भी है, इमोशनल दायरे में भी हैं और हालांकि स्पोर्ट्स और कंपटीशन से भी रिलेटेड हैं. So as a good coach, you should have a code of behavior based on a code of ethics which places the rights and needs of your athletes, before those of yourself.
You need to develop a caring and continuing relationship with the athlete you coach. Participants in sports is a social process. Your coaching will therefore have great power to shape the lives of your athletes through this social process. So what is there? What are the code of ethics? Each and everything, we have to follow some ethics. So what are the needs of your athletes? What should be your behavior? How you will deal with your athletes? So you have to be means you have to be very caring, and you should have a very good relationship with your athletes. So athlete and coach relationship is very, very important. As participation in sports is a social process. So when you're focusing for the coaching, so you have to nurture your athletes and you have to shape your athletes with the social process also, because they have to deal with the different type of crowds, place, crowd, everything is affecting their performance. जब हम बात करते हैं कोड ऑफ एथिक्स की, एथिक्स क्या है? कुछ हमारे जो मुद्दे हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं. बच्चों से कैसे बात करनी है, आपको बच्चों के साथ कैसा केयरिंग रहना है, आप कभी उनके गार्जियन भी हो, कभी आप उन्हें डांटते भी हो, कभी आप उन्हें समझाते भी हो, और अल्टीमेटली आपका मुद्दा क्या रहता है कि जब हमारा बच्चा कहीं कंपटीशन में जा रहा है तो हम उसका बेस्ट परफॉर्मेंस वो दे सके. लेकिन बच्चे को भी क्या है कि जब वो वहां जा रहा है तो उसे डिफरेंट टाइप का एनवायरमेंट फेस करना पड़ रहा है, डिफरेंट टाइप की क्राउड फेस करनी पड़ रही है. तो आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि आपको गुस्सा भी नहीं होना है, साथ साथ उसे भी समझाना है कि हाउ यू कैन डील विद द different situations and how you can give your best in any type of situation. So, what are the coaching styles? Becoming a better leader. So, we can see that in the past, the often accepted role of the coach was to be a dominant, authoritarian leader with the athlete as a disciplined follower. In the modern world, the athlete is exposed to wider views and his vocabulary has expanded to include the word why. So we can see that earlier it was that coach was a dictator. Okay, he was more dominant. Whatever he has told or she has told, students used to follow and you have to follow it. But the modern trend has changed. The wider views have inculcated in that. And the expansion of vocabulary is also added. Why? Because every student can ask, coach, why this type of training? Why you have to follow this? Why? So this is a big question, why? So this should not be seen as a challenge of the coach or his opposition, but a healthy curiosity and involvement with their learning on the part of the athlete. So we should not be very angry. When an athlete is asking why, we should not be angry. Rather, we have to see, we have to convince him, we have to see that what is the need of the day, why you are doing this training, why you have to follow such rules and regulations, why you have to follow this discipline. Because this is a part of learning for the athletes also. Once you are clear why you want to make this changes, why you want to train them like this, so they will come to know, okay, my coach has a different vision, he has a wide vision. So when you will tell your athletes regarding why, answer means why this type of training, why to start from here, why we are doing in the morning, why we are doing this one today. So once you are clear with your answers, what will happen? The athlete will understand and then he will coordinate with you. And he can, both the views of athlete and coach can make a base, means a big sound base where you can give your best to the athlete and athlete will have a faith on you and they can do the vice versa. पहले क्या था, जो कोचिंग का मुद्दा था, कोच कहता था डोमिनेंट था, कोच ने बता दिया आज ये होना है, आप पूछ नहीं सकते थे क्यों, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करनी है, आप जो कोच ने बोल दिया वही लक्ष्मण रेखा होती थी. लेकिन अभी का जो मॉडर्न वर्ड है उस पर क्या हो गया, थोड़े से व्यूज चेंज हो गए और वोकैबुलरी चेंज हो गए, मतलब जो बच्चे शब्द यूज कर रहे हैं वो थोड़े चेंज हो गए. क्या वर्ड आ गया है, क्यों, हम ये क्यों कर रहे हैं, आज की ट्रेनिंग क्यों है, अगर हमें ऐसा करना है तो हम क्यों कर रहे हैं. तो ये चीजें जो है ये कोच को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बच्चे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं. ये एक चैलेंजिंग कोच को लेना है कि अगर बच्चा कुछ पूछ रहा है, उसकी क्यूरियोसिटी है, उसकी उत्सुकता है कि ये जानने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए भी अच्छा है.
जब आप उसे बताओगे कि क्यों आज हमने ये ट्रेनिंग की, क्यों आपको ये लेना है, क्यों ये आपको करना है, तो क्या है, बच्चे की क्यूरियोसिटी जो है, जो उसकी उत्सुकता है जानने की किस चीज को, वो क्लियर हो जाएगी। और जब वो आपके साथ कन्विंस हो जा रहा है, वो आपसे वाकिफ हो जाता है कि नहीं, मेरे कोच जब आज ये करा रहा है तो इस चीज के लिए करा रहा है, तो आपका और उसका संबंध तगड़ा हो जाता है, और तब जो आप उसे बता रहे हो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो अब क्या है, अगर आप अच्छे कोच बनना चाह रहे हो तो हमें क्या ध्यान में रखना है, व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ बिहाइंड दिस। सो पहली फिलोसफी अगर हम देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हमारा दिमाग में तुरंत चीज क्या आती है। So maximum those coaches who were athletes tend to coach in the style that they were coached themselves. This is sometimes effective. To become a better coach, you should look carefully at the coaching or leadership style you use most of the time. Thing is that all are mostly what happens. Those who are coaches, they were trained by some other coaches. So they have a picture in their mind that how my coach used to teach me and how my coach used to tell me, I'll follow the same pattern. Sometimes it is effective. Yes, you can be right. But sometimes you have to change because you have to see. Sometimes they will ask you questions, sometimes they may not ask you questions. So you have to be carefully see the leadership style or the coaching style. And as per that, you have to plan the training system of your athlete. जब पहले क्या था कि जो भी बच्चे आप लोग कोचिंग में आ रहे हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोच के अंडर ट्रेनिंग की हो, तो आपके दिमाग में क्या है कि मेरे कोच ने मुझे ऐसा करवाया था और मुझे इस तरह से ही आगे बढ़ना है। सही, किसी किसी जगह में यह जो विजन है ये सही हो जाता है, लेकिन कहीं कि क्या हो रहा है, हमें थोड़ा अपने आप को चेंज करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने को बेहतर साबित करें, तो क्या हो रहा है, जो भी आपको कोचिंग स्टाइल यूज करनी है, या अगर हम कोई लीडरशिप स्टाइल को यूज करना चाह रहे हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन केयरफुली बहुत ध्यान से हमें देखना है कि हमारे बच्चों की डिमांड क्या है और हमारी डिमांड क्या है, दोनों का तालमेल बनाकर आपको ट्रेनिंग करवा दी है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, अ गुड लीडरशिप स्टाइल कम्स फ्रॉम योर कोचिंग फिलोसफी एंड योर पर्सनैलिटी एंड allows you to communicate more effectively with your athletes. अब इसमें क्या हो जाता है, आप सोचते हो कि we have to be a very better coach, we have to be a very good coach, we have to be a successful coach. Good. But you have to follow some rules and regulation for planning. Philosophy is very big, but keeping in mind the time and the level of athletes you are handling, you have to keep on changing, but not at the cost of our technique or training. So a good coach relationship style comes from coaching philosophy and what is important, personality, and allows you to communicate more effectively with your athletes. So coaching philosophy जो मुद्दा है, what is it, ये आपकी पर्सनालिटी से भी रिलेटेड है। आपकी पर्सनालिटी सही है, आप अच्छी तरह से समझा सक रहे हो, that's the best thing for your athlete as well as for you. So in short, we can see that what can be the leadership styles. You can see that one philosophy says win-centered, cooperative, athlete-centered, and casual. If you see the three types of leadership styles, authoritarian, always he's focusing for the winning. Cooperative, he's athlete-centered. He will look after the athlete's demand. And casual, no emphasis. Okay, whatever is going on, chalta hai. Then what are the objectives? Task objectives. When a coach is there, he is more focusing for the task objectives. Social and task objectives. He is looking after for the social as well as the task. And casual one is not focusing for anything. Now, when you are coming for the decision making, coach makes all decisions. And in cooperative style, decisions are guided by coach but shared. It's always decisions are guided by coach, but he will share or she will share.
And the casual approach coach, athletes make most, if not all, decisions. In this case, where the coach is casual, what happens? All the athletes will make their decisions as per their own choice. So that quality also you have to see, and you have to choose what type and what style you want to follow. Now, if you will see the communication style, he will tell and finish. Telling and asking, listening. We can tell also, and we say, we can, after listening, we can ask also something. And casual approach, only listening. What is the athlete is telling, I'll listen and I'll tell them, okay, do this. So that also affects our training program. Then communication style. Telling is there. He was telling and asking, listening. That is also a different thing. And then listening. Casual will just listen. He will not act anything. Now we can see the communication development. Little or more. High. For the cooperative side, high. And for the casual, none. So communication you have to develop with your athletes. Sometimes authoritarian will do very less. Okay, he may ask you some questions. Match में जाना है, ये सही है, little or none. Sometimes cooperative one will ask. He will make as per the situation, as per the plan. He can have a communication with athletes or the coach. And this one is that at the high level. He will have a very good rapport with athletes. Then and then. Sometimes what happens is not defined only. So now what is winning for an authoritarian coach? Judged by the coach. Cooperative coach, judged by athlete and coach. And the casual coach, not defined only. So what is the winning for an authoritarian coach? So he will just think as per his vision and choice. But as a cooperative coach, athletes will also verify it as well as the coach also. And if it is a authoritarian or casual coach, what happens? What is the casual coach? Not defined only. So if you will see three types of, as we have seen here, so authoritarian, cooperative, and casual. So now if you will see the athlete development, we have said now motivation level. Sometimes motivates all and no motivation only. So what should be the training structure? For the authoritarian, no flexible. It is the inflexible structure. Whereas for the other, it is flexible. And for the third one, no alternative only. Nothing is going to change, none. So authoritarian is inflexible, cooperative is flexible, and other one is none. So हम यहाँ देख सकते हैं कि how a training affects and what are the training leadership styles of a different type of coaches. अगर हम यहाँ इस चार्ट को देखते हैं, ये आपको सारा शेयर कर दिया जाएगा. तो अगर हम फिलॉसफी देखते हैं, अथॉरिटेरियन का है हमें सिर्फ जीतना है, कैसे भी करके जीतने का उसका टारगेट है. कोऑपरेटिव वो एथलीट को देखता है कि एथलीट की इंजरी भी ना हो लेकिन हमें जीतना भी है. कैजुअल वाला कोई चीज पे ध्यान नहीं देते हैं. उनके ऑब्जेक्टिव क्या है? टास्क ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये पहले से सेट करके रखते हैं. फिर दूसरा वाला जो है वो देखता है कि हमें दोनों चीज को ध्यान रखना है, सोशल भी और दूसरा सेक्टर भी. अब कैजुअल वाला है वो कोई ध्यान ही नहीं देता है. अब उसका ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो टास्क की जो मेन टास्क है उसका ऑब्जेक्टिव उसके दिमाग में होगा. जो दूसरे प्रकार का है उसका क्या होगा? सोशल और टास्क दोनों ही वो देखेंगे. और तीसरा है वो किस चीज पे ध्यान ही नहीं देगा. तो हम देख रहे हैं कि एक कोच को हम फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड से, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके बैकग्राउंड से, उसकी डिसीजन मेकिंग क्षमता के हिसाब से, और वो विनिंग सेंटर्ड है या लूजिंग सेंटर है उसके हिसाब से. तो हम देखते हैं कि एथलीट डेवलपमेंट उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मोटिवेशन का क्या चल रहा है, और ये सारे जो चीजें हैं वह एक पैकेज में आपको मिलती हैं कि कोच को कौन से टाइप से अपने आप को ग्रूम करना है, हमें किस तरह से अपने आप को डेवलप करना है. जब भी आप देखोगे सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि अपने इवेंट के हिसाब से हम कहाँ अपने आप को चेंज कर सकते हैं, और किसी चीज को अगर हमें चेंज करना है सो हम कैसे उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो अब रोल क्या है कोच का,
What are the roles of a coach? So what is the role? He's a teacher also, or she's a teacher also, imparting new knowledge, skills, and ideas. You have to impart the knowledge also. You have to tell about the techniques, training. You have to tell about the rules and skills, which are all right for you in the current situation, and the ideas. What ideas you can plan out for a match. So teacher, रोल क्या है कोच का? एज ए टीचर भी है, उसे बताना है, वो बच्चों को जागरूक कराता है रूल से, कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सी कंपटीशन करनी चाहिए, कौन सी कंपटीशन नहीं करनी चाहिए, ये सारे उसके पास रहते हैं। तो इस चीज को देख सकते हो आप कि बहुत देखना पड़ता है। सेकंड वाला जो हमारा मुद्दा आता है, उसमें हमारा रोल क्या है कोच का? ट्रेनर भी है। एज ए कोच उसका क्या है, ध्यान में क्या रहता है कि हमें इम्प्रूव फिटनेस करानी है, हमारे एथलीट की फिटनेस, चाहे वो ऑफ सीजन हो, हमें इतनी अच्छी करानी है कि सीजन में आते हैं वो हमें नेशनल मेडल दे सके। तो इस दायरे में आप देख सकते हो कि हमने यहाँ कुछ पिक्चर्स भी डाली हैं कि अगर हम कुछ दूसरे दायरे को लेते हैं तो उसमें हमारा क्या है रोल कोच का? एज ए ट्रेनर भी है। ट्रेनिंग किस तरह से करवानी है ना, जो आपकी फिटनेस के लिए करानी है, स्किल के लिए करानी है, या जैसे हमने अभी उसमें लिया था कोई रिसर्च आर्टिकल्स के थ्रू हैं। इसके बारे में हम और क्या जान सकते हैं? What else? Instructor. He's a instructor where he is giving directions for different activities and practices. He's an instructor on the ground. वो फिटनेस करवा लिया है, अब रोल का कोच है इंस्ट्रक्ट करना है, आप कैसे स्किल ले रहे हो, आपको कहाँ पिवोट करना है, आपको कहाँ किस तरह से फोकस करना है अपनी जो आप जिस इवेंट से रिलेटेड हो उसकी एक्टिविटी को करने के लिए। You can see if you are shooting, how to arrange sessions, how do you have to make it a team sports. Second thing is that when you are instructing something, you have to be very much clear. That आपको बहुत क्लियर होना पड़ता है जो हमने इनको करवाया है, इंस्ट्रक्शंस दी है, और जो हम प्रैक्टिस दे रहे हैं उसका सही माने में सीख सके और उपयोग हो सके। So you can see, as a coach, you have to be a motivator also, generating a positive and decisive approach. तो कोच का काम है एज ए मोटिवेटर उसे मोटिवेट भी करना है कि पॉजिटिव अप्रोच बताना है, कि पॉजिटिव विजन उसकी हो, ये ना दिमाग में आए कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। नो, आपको पॉजिटिव होना है, आप पॉजिटिव रह के हाँ कर सकते हैं, यह अप्रोच आपको दिखाना है। और मोटिवेशन के लिए क्या है, आप उस समय भी करा सकते हो, उसके पहले भी करा सकते हो, बाद में भी करा सकते हो, लेकिन मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे बच्चा अपने आप को अच्छी तरह से तैयार करता है अच्छी कंपटीशन के लिए या किसी भी लेवल की कंपटीशन के लिए और परफॉर्मेंस के लिए। फिर अब आप देख सकते हो कि मोटिवेट करना है, और साथ ही कोच का इंपॉर्टेंट रोल क्या आ जाता है, यह एक डिसिप्लिनरियन होता है, क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट फॉर ईच एथलीट सेल्फ कंट्रोल। सो डिसिप्लिनरियन क्या है, आप जब ट्रेनिंग करवा रहे हो तो एक ऐसा एनवायरमेंट अपने बच्चों के लिए क्रिएट करोगे जिससे कि आपके बच्चे अपने आप को कंट्रोल में रख सकें। You will make a program or you will make a training program so that all can participate from the conditioning part as well as each athlete का सेल्फ कंट्रोल जो है, नो आई शुड गो देयर, आई शुड नॉट गो देयर, जो आपका कोई भी कंट्रोल है वो आपको आराम से समझ में आ सके और आप कर सको। अब कोच कभी कभी क्या सोचता है कि एज ए मैनेजर का भी काम उसे करना पड़ रहा है। समटाइम्स कोच हैज टू सी एज ए मैनेजर ऑल्सो, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग ऑल्सो। सो कोच हैज टू प्लान ऑल्सो and he has to organize also. So as a manager also sometimes he has to act. Then a coach can be administrator also, dealing with the paperwork. Administrator also he can be, अब जो मोटिवेशन का काम कर रहा है ना, उसके साथ साथ वो एक मैनेजर का भी काम कर रहे हैं, साथ साथ वो एडमिनिस्ट्रेटर का भी काम कर रहे हैं, वो पेपर वर्क भी कर रहे हैं, आपकी टीम के बारे में बनाना भेजना, रिजल्ट्स बनाना भेजना, आपकी प्लान करना कि आपको कैसे किस कंपटीशन में जाना है, कैसे समय में जाना है, रिकवरी के लिए क्या ध्यान रखना है, ये सारा चीज का
पेपर वर्क भी कोच करता है। इसके साथ ही कोच क्या है, एक सोशल वर्कर भी है। काउंसिलिंग एंड एडवाइजिंग ऑल्सो अ कोच वर्क इज देयर। So we are human beings and athletes are also human beings. So what happens sometimes, you have to advise them and counsel them. कभी कभी सोशल वर्क का भी काम करना पड़ता है कोच को। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, घर की है, बाहर की है, उसे समझाना भी पड़ रहा है, उसे एडवाइस भी करनी पड़ रही है कि आप इस तरह से करोगे तो ये अच्छा होगा, इस तरह से करोगे तो ये अच्छा होगा, आपको इस तरह से रहना है। तो वो एक सोशल काम, आपको बातचीत कैसे करनी है, ये सारा जो आपका इंटरेक्शन है वो भी आपको कोच को एक सोशल वर्कर का रोल भी अदा करना पड़ता है। सो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताया था, यू आर हिज फ्रेंड ऑल्सो और हर फ्रेंड ऑल्सो। एज ए फ्रेंड के तौर पर भी आपको उनके साथ काम करना है। साथ ही साथ कोच का और क्या चीज ध्यान में रखना पड़ता है, कोच एक sometimes coach is acting as a scientist also. He's analyzing postures, skills, evaluating and problem solving. He has to see his athlete's technique, maybe team analysis or the technical analysis of the particular skill or technique. So you have to evaluate, you have to analyze, and you have to solve the problem. Why the athlete's hand is not moving in the throw proper direction? Why the athlete cannot run over the hurdles properly? Why he cannot or she cannot kick the ball properly? How scoop is important? Why? So you have to analyze, you have to evaluate, and you have to be very cardinal with the problem solving methods. So कोच को कभी कभी क्या है, साइंटिस्ट भी बनना पड़ता है। स्किल है, टेक्निक है या टीम एनालिसिस है, उसका एनालाइज भी करना पड़ता है, इवेल्युएट भी करना पड़ता है, और उसके साथ ही साथ उसका निष्कर्ष पे जाकर कैसे सॉल्व करना है ये भी बताना पड़ता है। So coach sometimes act as a student also, always willing to listen, learn and look for new knowledge. So you can see here, sometimes coach has to act as a student also. He should or she should listen to the we have to listen to the athletes, we have to learn also and look for new knowledge also. Sometimes what happens when they are in the practical situation, coach has to be very much willing to listen what the athlete is saying. Sometimes it clicks so that you can get something better points. So जब आप कोच को एज ए स्टूडेंट भी कभी कभी काम करना पड़ता है, जो एथलीट्स बता रहा है उसके प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है या उसकी जो थिंकिंग है वो कोच के साथ शेयर करता है। कोच उससे भी सीखता है कभी कभी, और न्यू नॉलेज भी करंट सिचुएशन में क्या आपको करना है, हर समय तो एक सिचुएशन नहीं होती है, तो उस दायरे में भी कोच को कभी कभी बच्चों से सीखने को मिलता है। फिर कोचिंग फिलॉसफी क्या है, व्हाट इज द फिलॉसफी? Athlete centered, site based and coach driven. So it should be, we are dealing with the athlete, so always it is athlete centered. We have to see the athlete's demands, then it should be a scientific basis, and it should be coach driven. Okay, we are listening everything, whom we are dealing, athletes, we have to follow some scientific knowledge, and as a coach also you have to drive yourself to make your athlete success, maybe scientific, maybe in society, or maybe in the rules what are played by a coach. जो कोचिंग फिलॉसफी का मुद्दा क्या है, एथलीट सेंटर्ड है, हम एथलीट को फोकस करते हैं, साइंटिफिक बेस हमारा है कि हम साइंस को भी ध्यान में रखते हैं, और कोच का जो हमारा दायरा है कि हमें किस तरह से टीम को जितानी है या हमें किस तरह से बच्चों को ट्रेनिंग करवा के रिजल्ट लाना है, ये भी इंपॉर्टेंट दायरा है। फिर अब हमारी जो स्टाइल्स है उसमें हमें किस तरह से हम एथलीट को हेल्प कर सकते हैं। व्हाई डिड योर एथलीट्स गेट इन्वॉल्व इन एथलेटिक्स? एथलेटिक्स में चाहे कोई सा भी गेम हो, सो बिकम देयर फ्रेंड्स टू डू, हैव फन, मीट अदर पीपल, मेक फ्रेंड्स, develop their sports skills, achieve success, get fit. So what happens, why sometimes athletes are coming to you? Performance is a different thing, but
why your athletes want to involve. That things should be clear to you. You can be their friend. They want to develop their circle. Sometimes they come for the fun. They want to meet other people. They want to make friends. They want to develop sports skills, achieve success, and get fit also. So these are the various elaborated things which you have to see, that why did your athlete get involved in the athletics. So as a coach, you need to know what motives your athletes is having. What are their motives? And keeping in mind their motives, you have to nurture them. So जैसे आपके बच्चे आपके पास आ रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको उसको ध्यान में रखकर मोटिवेट भी करना है और आगे का जो हल है वो भी ढूंढना है. So the idea has been expressed as athletes first, winning second. तो हम उससे क्या, किस तरह से हम आइडिया क्या हम कॉमनली ला सकते हैं और उसे किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि एथलीट पहला है जिसे हमें देखना है कि इंजरी फ्री हो, मोटिवेट हो, उसका भी जो इमेज दिमाग में है वो फुलफिल हो. और विनिंग हमारा सेकंड है कि इफ दैट हिट्स, ही इज मोटिवेटेड, ही कैन पिक अप, देन विनिंग इज द नेक्स्ट टारगेट. So what is athlete first and winning second? Athlete is seen as one aspect of a person's life, not his whole life. There is respect and appreciation of the coach and his athlete decide with the coach the importance of performance and strive to meet their joint expectations. There is respect for the laws and spirit of fair competition. Athletes reaching their potential is seen as success. There is respect for opponents, other coaches and officials. So you can see what things you have to focus. Why we say athlete first and winning second? So we have to follow so many things in our mind. So अगर हम देखते हैं कि एथलीट फर्स्ट और विनिंग सेकंड हम क्यों ध्यान में रखते हैं, हमें देखना है एथलीट आपके पास जब तक ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी जिंदगी भर तो वो ट्रेनिंग करेगा नहीं. फिर हमें क्या ध्यान में रखना है, एथलीट्स के भी दिमाग में क्या रखना है कि आपको रिस्पेक्ट भी करना है. कोच अगर अच्छा करा रहा है तो उसे कोच को भी अप्रिशिएट करना है और कोच को भी एथलीट को अप्रिशिएट करना है. एथलीट को जो है दिमाग में क्या रहता है, परफॉर्मेंस. और एथलीट किससे बात करता है, कोच से, कि जो हमारे परफॉर्मेंस का इंपॉर्टेंस क्या है ना, महत्व क्या है, और किस तरह से हम एथलीट कोच के जो डिमांड्स हैं या जो उनका तालमेल बैठाकर हम कैसे अपने जो हमारे दिमाग में चल रहा है उससे हम सक्सेसफुल बना सकें. साथ ही साथ कोच और एथलीट के दायरे में हमें क्या देखना है, लॉज भी हम जो हमारे नियम कानून है उससे बनाकर रखकर हम एक फेयर कंपटीशन कर सकें. और अगर एथलीट के अंदर जो क्वालिटी है वो वहां तक सक्सेसफुल हो जाता है ना, वो भी हमें एज ए कोच ध्यान में रखना है. साथ साथ एथलीट क्या ध्यान में रखता है कि जो कोच मुझे ट्रेनिंग करा रहा है, कोच को क्या सिखाना है कि अपोनेंट जो है उन्हें किस तरह से रिस्पेक्ट देना है, दूसरे जो कोचेस हैं उन्हें भी किस तरह से रिस्पेक्ट देना है, जो कोचेस हैं उन्हें भी किस तरह से रिस्पेक्ट देना है. तो एथलीट का दायरा पहला है, लेकिन साथ साथ विनिंग का जो दायरा है, जो कोच के दिमाग में चल रहा है, इन दोनों का तालमेल होकर ही ट्रेनिंग करवानी है. अब कोचिंग स्टाइल्स में क्या है, टेलिंग, शोइंग एंड इन्वॉल्विंग. यू आर टेलिंग heavy on command and instruction. अब showing में क्या है, emphasis on demonstration. This is how to do it. Involving क्या है, uses self discovery and questioning to raise awareness. अब आप बता भी रहे हो कमांड के साथ इस तरह से करना है, इंस्ट्रक्ट भी कर रहे हो, आप डेमोन्स्ट्रेट भी करके बता रहे हो कैसे करना है, और सेल्फ डिस्कवरी के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस भी आप बोल रहे हो कि इस तरह से क्यों करना है और क्या फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है. और टेलिंग वाले में क्या है, कोच लेड, कोच सेंटर्ड, कोच मेक्स ऑल डिसीजंस. इन शोइंग व्हाट इज दैट, कोच लेड, कोच एंड एथलीट सेंटर्ड, कोच इनवाइट्स क्वेश्चंस एंड आइडियाज बट देन मेक्स द डिसीजंस. नाउ इन्वॉल्वमेंट, थर्ड वन इज दैट athlete led, athlete centered. How?
Coach uses questions to raise awareness. Athlete makes decision. So next, what is entailing? Useful with large group where safety is paramount or time is short. This is useful with the large group where safety is paramount or time is short. Training useful with practical skills with novice and younger athletes. Involving style used whenever possible. Maximizes learning and retention of what is learned. So now relate to your own coaching practice and the effect on the athletes. So ये अगर हम देखते हैं कि इस तरह के तीनों कोचेस के बारे में हमने देखा है, ये एथलीट सेंटर है. अब हमें अपने आप को रिलेट करना है कि जब हम प्रैक्टिस करा रहे हैं कौन से स्टाइल है जो हमारे एथलीट्स के लिए जरूरी है. अब क्या मॉडल्स हैं? There are 3 basic models for the coach-athlete relationship: Scott system, partnership system, transfer system. So you can, out of this, you can Scott also. You can Scott the system. Okay, this is the system. You can have the athlete and your vision, partnership, and transfer system. Okay, you can tell what is your motto, and you can tell them to mend it. Whichever is used must be the right fit for the coach and athlete. आपने स्कॉट सिस्टम यूज किया है, आपने पार्टनरशिप दोनों का तालमेल बनाकर किया है, या ट्रांसफर सिस्टम किया है क्योंकि बच्चे ने बोला इस तरह से आपने ट्रांसफर किया. आपका कौन सा चीज आपके एथलीट और आपके इवेंट, आपके डिसिप्लिन के हिसाब से आपको सूट कर रहा है, वो आपको फॉलो करना है. अब स्कॉट सिस्टम क्या है? द कोच स्कॉट्स द एथलीट फ्रॉम द मोमेंट द एथलीट commences in athletics to the athlete's retirement from the sport. जब बच्चा आपके पास आया वहां से रिटायरमेंट तक का वो आप पूरा कोच ही गाइड कर रहा है. पार्टनरशिप सिस्टम है, द कोच recognizes that they cannot meet all the needs of the athlete and works together with a more experienced coach to meet the athlete's needs. In partnership, what happens? Coach knows these are my limitations. I can take the help of scientific staff, support staff, so that what is the need of my athlete can be fulfilled. Transfer system is what? The coach transfers the athlete to another coach as the athlete moves through the education, institute or club system, or when the coach recognizes that they can no longer meet the needs of the athlete. अब यहाँ हम देख रहे हैं स्कॉट सिस्टम में क्या है? एथलीट कोच के पास बच्चा आया तब से वो एंड तक कोच ने उसका सब कुछ बनाकर रखा, और जब वो छोड़ा तब तक कोच ही उसे गाइड कर रहा है. पार्टनरशिप में क्या है? कोच अपने भी कुछ व्यूज डाल रहा है, बच्चा अपना भी व्यूज डाल रहा है, और दोनों का तालमेल बनाकर जो हमारा एथलीट का डिमांड क्या है वो पूरा होता है. ट्रांसफर सिस्टम में क्या है? ज्यादा एजुकेशनल ध्यान में रखा जाता है. आपने जो बच्चों को ट्रेनिंग करानी है वो सब चीज दिमाग में रखा है. आपने देखा है कि आपके इंस्टीट्यूट का सिस्टम क्या है, उसकी डिमांड क्या है, और उसकी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से आपने उसको करने के लिए छोड़ा है. So, what is code of ethics? What are the main points of the code of ethics for coaches? जो एथिक्स है वो क्या है और क्या उसका कोड होना चाहिए बच्चों के प्रति, और कोच को क्यों ये चीजें ध्यान में रखनी है? क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग जो ट्रेनी है या वो इंडिविजुअल, उसकी अलग अलग तरह के विजन होती है या उसकी सोच होती है. रिस्पेक्ट ऑफ एथलीट्स, कोचेस, ऑफिशियल्स एंड रूल्स. कोचेस के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है? बच्चों के साथ बिहेवियर, एथलीट्स को डील करना, दूसरे कोचेस के साथ डील करना, ऑफिशियल के साथ डील करना, और या रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बच्चों को करवाना. साथ ही साथ उसके तहत क्या चीज आती है? हेल्प एथलीट्स टू डेवलप इंडिपेंडेंस. बच्चे अपने आप किस तरह से स्किल, टेक्निक या कंपटीशन में इन्वॉल्व हो सके. फिर कोड ऑफ एथिक्स का दायरा क्या है? कहता है हैव द रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंस. जितने आपको कंपटीशन के लिए चीजें ध्यान में रखनी है उतनी आपको ध्यान में रखनी है. पहला मुद्दा एजुकेशन. सेकंड आपका क्या होता है? इनिशियल एंड कंटिन्यू, सतत कंटिन्यूएशन में रखना है.
देन हैव अ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर वर्दी ऑफ द कोचिंग कम्युनिटी। तो एथिक्स में हमारा क्या आता है? रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, बिहेवियर हमारा अच्छा और एक दूसरे को हम सम्मान देते हुए होना चाहिए। जो हमारा है वर्दी ऑफ द कोचिंग कम्युनिटी, हमारी जो कम्युनिटी है कोचिंग वाली, जिसे हम एज ए ट्रेनिंग या हम ट्रेनर कह रहे हैं, उस कम्युनिटी के जो दायरा है उसे बरकरार रख सके। टीचर को अपना महत्व बरकरार रखना है, वैसे ही कोच को अपना बरकरार रखना है। एथलीट डेवलपमेंट, द लॉन्ग टर्म अप्रोच, एथलीट का डेवलपमेंट जो है एक बहुत लंबा दायरा है ना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ भी चीज मिलती नहीं है, नथिंग यू गेट इन द शॉर्ट टाइम। द एसेंशियल रोल ऑफ द कोच इज व्हाट? हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ एथलीट्स to reach their full athletic potential. So what coach role is that? He has to nurture, he has to develop the athlete to reach up to his or her full athletic potential. What is the quality they are having? Inherent qualities, hidden qualities, you have to bring them up and you have to make successful up to the end for the top performance. तो essential role of the coach क्या है? आपको अपने एथलीट को जानना है, ट्रेनिंग करवाना है, और एक एथलीट का जो पोटेंशियल है, उसके अंदर जो उसकी क्वालिटी है, उसके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है, उसके अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट है, वो सारी चीज को निकालकर अंत तक पहुंचाना है। सो द लॉन्ग टर्म अप्रोच शुड बी कंसिडर्ड फॉर ऑल एथलीट्स बिफोर शॉर्ट टर्म डेट्स आर सेट फॉर athletics competitions. So long term approach should be considered for all athletes. When you will come to the long-term approach, then only you can go for the short-term dates and how to make them to train for the short-term competitions. So main क्या है हमारा? long-term planning हर बार एज ए कोच को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि जो भी हमें स्किल है, टेक्निक है, बिहेवियर है, वो डेवलप करने के लिए लंबा टाइम चाहिए रहता है। जब हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए करते हैं, तो शॉर्ट टर्म की जो हमारे डेट्स हैं या हमारे प्लान्स हैं, वो आपको इतना अच्छी तरह से तैयार करता है कि आप जो मेन कॉम्पिटिशन है तब तक आप उसके आसपास पहुंच जाते हो। सो अल्टीमेटली स्टेटमेंट ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स? राइट टू डू स्पोर्ट्स, राइट टू हैव फन एंड प्ले लाइक अ चाइल्ड, राइट टू एंजॉय गुड कंडीशंस, राइट टू ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू बी ट्रेन्ड बाय competent people, right to compete with children with the same chances of success, right to take part in appropriate competitions, right to do sports in complete safety, right to get some good rest, right not to be a champion, right to do sports is okay, right not to be a champion. ये हमें एज ए कोच हर दर ध्यान में रखना है कि जो हम राइट, बच्चों के राइट्स क्या हैं, हमें किस चीज को ध्यान में रखते हुए उनको ट्रेनिंग करानी है। बच्चों को डांटना है, उनको आप डांटते भी हो तो प्यार भी करना है, फन के माध्यम से सिखाना है, अच्छी कंडीशंस होनी चाहिए। बच्चे जो भी कर रहे हैं वो बहुत सोच समझकर उनको ट्रेनिंग करवानी है। और अगर हम ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं, तभी एक हम अपने बच्चों को अच्छा एथलीट बना सकते हैं या नर्चर कर सकते हैं। अब philosophy and coaching styles becoming a better leader. Why we need a coaching style? Coaching and leadership style comes from your coaching philosophy, your personality, your skill as a coach. जो कोचिंग और लीडरशिप स्टाइल है वो क्या, हर एक की अलग अलग है, किसी की गलत नहीं है, सबकी सही है, लेकिन आपकी एक फिलोसफी होनी चाहिए कि आप इस तरह से, आपकी सोच ये है और इस तरह से आप ट्रेनिंग करवाओगे। आपकी पर्सनालिटी है वो ऐसी होनी चाहिए जो आपकी कोचिंग स्टाइल को सूट करे। दूसरी है योर स्किल एज ए कोच, आपकी जो स्किल है एज ए कोच वो बहुत अच्छी तरह से अपने आप को बनाना है, ताकि जब भी आप स्किल या कोई ट्रेनिंग कर रहा है बच्चों को, दे शुड पे रिस्पेक्ट टू यू, आपकी पर्सनालिटी को निखार ला सके, आपकी जो फिलॉसफी है कोचिंग की उसको वह उस मुकाम पर पहुंचाए जिससे कि बच्चों का अच्छा रिजल्ट्स आ सके। सो हम देख रहे हैं कि इतने सारे कोच के रोल हैं और इतने सारे कोच के रोल ध्यान में रखते हुए हमें पर्सनालिटी डेवलप भी करनी है, एथलीट की पर्सनालिटी, कोच की पर्सनालिटी, उन सारे को ध्यान में रखकर हम ट्रेनिंग करवाना भी है। और हमें देखना है कि वेदर व्हाट इज योर स्टाइल, व्हाट यू आर थिंकिंग, वेदर यू आर जस्टिफाइंग एज अ कोच, वेदर यू आर
गिविंग योर 100% फॉर योर एथलीट्स, बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स. जो आप डील कर रहे हैं वो बच्चे भी हैं, एलिट लेवल के भी हैं, जूनियर्स भी हैं, और माइनर्स भी हैं. आपको कभी न कभी हर तरह के ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है. तो मेन मुद्दा है कि हम जब भी इंटरेक्शन बच्चों के साथ कर रहे हैं, वी हैव टू जस्टिफाई आवरसेल्फ, वी हैव टू जस्टिफाई एथलीट्स, एंड अल्टीमेटली वी हैव टू मेक सच अ नाइस बॉन्डिंग विद आवर एथलीट्स. कोच का बिहेवियर, बच्चों का बिहेवियर ध्यान में रखते हुए हमें एक ऐसा आदान प्रदान करना है कि जब आप कोच एज ए कोच खड़े रह रहे हो, बच्चा आपको रिस्पेक्ट दे, बच्चों की चीजें की डिमांड क्या है कोच सुने, और एक सुंदर सा एटमॉस्फेयर तैयार करके आप अपना जो मेन एम है कि बच्चों को नर्चर किस तरह से करें, ताकि कोच का जो एम है बच्चे को मेडल लाना है, और बच्चे का एम है कि मैं किस तरह से कोच के जो बच्चा सिखा रहा है कोच, उसे मैं ले सकूं. अब अपने बच्चों को पहचानिए, अपने एथलीट्स को पहचानिए, अब अपनी क्वालिटीज को पहचानिए और ग्रूम करने की कोशिश कीजिए. नथिंग इज रॉन्ग. वी हैव स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू इंप्रूव आवरसेल्फ, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ एथलीट एंड कोच रिलेशनशिप. ये इतना सुंदर हम कह सकते हैं कि अगर कोच एथलीट का बॉन्डिंग अच्छी हो जाए तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, एथलीट भी आपके साथ रहेंगे, और जो एथलीट की डिमांड है कि मेरा कोच इस तरह से मुझे करवाना चाहिए, ये भी प्लेटफॉर्म सेट हो जाए. एंड यू कैन मेक, और वी कैन मेक एज अ कोचिंग कम्युनिटी वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू मेक आवर मेन गोल सक्सेस. अब मैंने थोड़ा जल्दी लेने की कोशिश की है क्योंकि टाइम कम है, लेकिन जो हमारा कुछ मुद्दा है, हम जैसे पहले बताया था कि हमने जो कोच हमें करवाया है हम उस चीज को फॉलो करते हैं, लेकिन कभी कभी हम कहते हैं हमारे बच्चों को कि जो हमने किया है या हमारे जो कोचेस ने किया है हम बैक पॉकेट में रख दें. हम देखें कि हम अपने आप को कैसे नर्चर कर सके, हाउ वी कैन डेवलप आवरसेल्फ. बच्चों को भी सुने, आपकी डिमांड है, करंट डिमांड क्या है, उन सारे को दायरे में रखकर वी कैन मेक अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर आवर सक्सेस. I think thank you for everybody. If you have questions, you can ask. I'll share this PPT to you. If you are okay, you can just put a thumbs up, and some other class we can have a good interaction. If you have any questions, you can put in the chat box, or if it's clear, I think मैंने अपनी तरफ से दोनों लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है. So thank you for this. And shooting, those who are with the shooting, swimming, and table tennis, I think we have different demands. Swimming, like more training method is more equal to athletics, track and field. TT की demands अलग हैं, shooting की अलग हैं. So each and every coach has a different thinking, and we can manage it to a common platform. Thank you. So I think it's the time for lunch also. All the best for your next class, next session. Thank you.